नमस्कार। गपशप जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने वाले हैं। इट्स अबाउट सेलेक्टिंग अ करियर। और ये जो एक चीज है, इससे सभी पेरेंट्स और बच्चे बहुत ही एक ये उनके लिए इम्पोर्टेंट इशू होता है। टुडे वी हैव एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट, डॉक्टर नीलिमा जयसिंघानी। नीलिमा जो है, शी इज एन एकेडमिशियन और उसके साथ ही शी इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर and English language verbal aptitude trainer. Or she has touched life of around 9,000 plus students and helping them to select the right choices about career. क्योंकि करियर एक ऐसी चीज है, आप ट्वेल्थ के बाद या अंडर ग्रेजुएशन के बाद एक आपके पास लाइन होती है जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, एंड देन रिमेन्स फॉर यू फॉर ऑल योर वर्किंग लाइफ। तो ये चीज ऐसी है जिसके लिए बहुत ही केयरफुल सिलेक्शन अगर हो तो बहुत अच्छा, अदरवाइज तो आप खैर कभी भी चेंज कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज गुड टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, इजंट इट? सो Yes, नीलिमा, absolutely. welcome to Gupshup Junction. So all stage and mic is all yours. We are looking forward to learn, you know, सिलेक्शन प्रोसेस क्या, एप्टीट्यूड के साथ हमें क्या किस करियर में जाना चाहिए। तो ये सब बातें आज हम आपसे सीखने वाले हैं। वेलकम टू गपशप जंक्शन। Thank you. Thank you so much, Neeza ji, for having me on this podcast. I strongly believe in one thing. The manner in which we show up in our everyday activities is the same way we have to show up in our life. If I give you an example of Virat Kohli, what happened in the World Cup, I mean, the transformation that we all cricket lovers have seen in Virat Kohli over the last couple of years, it was just not that he practiced for a few months or, it was just a couple of weeks before the World Cup. Absolutely not. He made it a habit since last 5, 6 years and transformed his personality completely. That's how he could play consistently well for his country in 11 continuous matches. Right. So that we have to make something a way of our life. We have to actually not consider anything as an obstacle or an hindrance. We have to embody everyday activities Hmm. as if it's the most important thing in our life, and we should live it with full confidence, passion, and joy. Hmm. That's my guru mantra for my children. And it's very necessary for the parents and the children to realize that career choice is just not a cup of tea. It's the entire life that depends on the right career choice. Just to give you a few examples, I have taught about 4 to 5 thousand engineers. You won't believe, because I was in this industry where the churning of the students was every 6, 8 months. So about 4 to 5 thousand engineers I have interacted with in my entire career span. And you will be surprised to know about 80% of them used to say, and they told me, मैम पता नहीं क्यों इंजीनियरिंग करा, जो भी पढ़ा 4 साल कॉलेज में हम यूज ही नहीं कर पा रहे, हम अप्लाई ही नहीं Oh, करते अपनी डेली लाइफ में. okay. So they regret doing engineering because they are not getting the specific roles that they were trained for. Hmm. सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करूं, मैंने अभी 100-150 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सेशंस लिए थे पिछले साल. आप मानोगे नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी द कन्वर्जन रेट इज जस्ट अबाउट 5 to 6%. जितने स्टूडेंट्स सीए के एग्जाम लिखते हैं, Hmm. बस 5 से 6% कंप्लीट सीए बनते हैं सीए Hmm. फाइनल के बाद. एंड because of the current changes in our economy and the growth pattern in India per se, there is a 37% increase in employment opportunities for fresher CAs. Okay. And इतना जब opportunities हैं, just about 10% of the fresher CAs get their dream job and their dream company. What I'm trying to say by giving you these both examples, engineers and chartered accountants, is there's a huge gap somewhere. There is a mismatch. कहीं ना कहीं या तो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की एस्पिरेशंस की वजह से गलत सिलेक्शन कर लेते हैं, Hmm. या कुछ जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं. सो देयर इज अ ह्यूज गैप. और ये
ये टॉपिक एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जो हमें जरूर डिस्कस करते रहना चाहिए सोसाइटी में। इवन स्कूल्स कॉलेजेस को भी अपने स्टूडेंट्स के लिए करते रहना चाहिए, बिकॉज यू नो राइट मेंटरशिप एंड राइट गाइडेंस बहुत जरूरी है आपके पोटेंशियल को, टैलेंट को बाहर निकालने के लिए। वेरी पीपल नो। राइट। या सो आई एम श्योर आपके पास भी, आपने ये टॉपिक आज डिस्कस किया है तो कुछ क्वेरीज आती होंगी, या आपने भी देखा होगा सोसाइटी में यू नो देयर इज अ नीड, सो देयर इज अ मिसमैच इज व्हाट आई मुझे फील। एक्चुअली एक छोटा सा एक किस्सा याद है। व्हेन माय सन यंगर सन वाज इन प्री स्कूल, बिफोर आई मीन द प्री स्कूल क्लासेस वेयर वी यूज टू सेंड चिल्ड्रन की जो स्कूल इंटरव्यू होएगी उससे पहले थोड़ा सा बच्चे को एक सेपरेशन एंजाइटी ना हो, छोटे से स्कूल में भेजते हैं पहले कि 1 घंटे 2 घंटे को जाए। तो वहां पे जो लेडी थी शी बिकेम माय फ्रेंड, शी वाज एक उन्होंने घर में अपना एक स्कूल शुरू किया हुआ था। आई एम टॉकिंग व्हेन आई वाज इन एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। तो वहां पे क्या अच्छा। हुआ कि वो मुझे ऐसी बात कर रही थी। तो मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम द एजुकेशनिस्ट बैकग्राउंड, मैं कॉलेज में पढ़ाती थी पहले। जब मैंने इसको भेजा वहां स्कूल में तो मुझसे बात करने लगी, मैं इसको लेने जाती थी कभी, तो मेरे कहती मेरे पास आज एक डॉक्टर ने ज्वाइन किया। मैंने कहा क्या, मतलब शी इज नॉट इन टू प्रैक्टिस, शी हैज जॉइंड अ प्री स्कूल। तो वो कहने लगी कि हाँ। और वो उसने लेडी ने क्या कहा कि डॉक्टर, क्योंकि जब हम लोगों के टाइम में इंजीनियर्स डॉक्टर्स और एक सीए, बस ये 3 4 चीजें हुआ करती थी। और अगर आपने रिसर्च करके पीएचडी करी देन इनटू टीचिंग आइदर स्कूल और कॉलेज, बस यही ऑप्शंस थे उसने। अदर देन यूपीएससी एग्जाम्स, यस, ये गवर्नमेंट जॉब्स ये सब तो थी। बट वो एक ये जो ऑप्शंस थी उसमें दिस गर्ल वाज अ डॉक्टर और उसने वो प्री स्कूल चुना। और एंड आई मेट हर आफ्टर आई थिंक 15 20 years एंड दिस लेडी वाज स्टिल विद हर। मतलब उसने अपनी अच्छा। मेडिसिन की प्रैक्टिस ही नहीं करी। अब आप सोच के देखिए मेडिसिन में एडमिशन इतना टफ होता है, पढ़ाई इतनी टफ होती है, स्टिल शी ऑप्टेड फॉर अ प्री स्कूल, देन शी स्टार्टेड हर ओन स्कूल एंड आई मीन शी ग्रीव इन दिस फील्ड। पर ऐसे और उसके पास इंजीनियर्स लॉयर्स ऐसे बहुत लोगों ने अपने बच्चों के साथ स्कूल ज्वाइन किया एंड दे रिमेन देयर। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा। ये तो है ना कि रॉन्ग चॉइसेस आप ले लेते हो एक एज में और उसके बाद अपनी एफर्ट, अपनी पैसा, अपने कुछ खोए हुए से ड्रीम्स जो एक्चुअल में आपके हैं ही नहीं। करेक्ट। तो वो चीजें, बिल्कुल। टाइम भी वेस्ट होता है जिंदगी का। तो इट इज ऑलवेज गुड कि एक सही डायरेक्शन मिल जाए एट द राइट टाइम। तो बिल्कुल। ये तो बहुत तो जरूरी है, इसीलिए नो तो डाउट। हाँ देखिए, हम सब ने ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं हमारी लाइफ में कि रॉन्ग चॉइसेस हैव बीन मेड, हम्म। एंड कहीं ना कहीं यू हैव टू पे द कॉस्ट, हम्म। यू नो पीपल पेयर द ब्रांट ऑफ इट। तो क्या करना चाहिए सही चॉइसेस के लिए, और क्या एक्चुअली होना चाहिए स्पेशली स्कूल लेवल पे, तो ताकि बहुत देर ना हो जाए, इसके लिए मैं हम्म। एक छोटा सा आपको बताती हूँ चीजें कैसे करना चाहिए। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जरूर। तो आजकल हमारे जमाने में, जैसे आपने बोला नीरजा जी, की चॉइसेस बहुत लिमिटेड थी, हम्म। और आजकल इतनी चॉइसेस हैं, और हर करियर एक वेल पेइंग करियर है, और हम्म। ग्रेटिफाइंग करियर भी है, सेटिस्फाई होते हैं। हम्म। फिर भी एक कंफ्यूजन तो है ही लोगों के दिमाग में। बिल्कुल। तो अब ये समझ नहीं आता कि इसकी वजह क्या है। इज इट अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, या लोगों को पता ही नहीं है कि क्या ऑप्शंस है और उनके लिए क्या सही है। हाँ तो ये एक्चुअली मुझे लगता है आयरनी ये जो है, है, कंफ्यूजन भी बहुत है एंड चॉइसेस पता भी नहीं है। पता ये भी तो नहीं बहुत है। इम्पोर्टेंट एक है कि पता होनी चाहिए। जरूर। या हम्म। तो अब आप ये एक चार्ट ही देखें, मैंने सिर्फ आपको ऐसी प्रेजेंट किया कि देर आर सो मेनी ऑप्शन। हम्म। एनी फील्ड यू चूज, एक कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, साइंस लीजिए, तो ये जस्ट अबाउट 25% है, इससे ज्यादा इनके स्पेशलाइजेशन और बहुत ज्यादा है। हम्म। आई मीन यू नेम अ कोर्स इन सॉफ्टवेयर, इन जर्नलिज्म, इन फार्मेसी, इन यू नो गवर्नमेंट जॉब, फिल्म मेकिंग, इट्स हम्म। एंडलेस। तो यहीं पे बचा के सब बोलते हैं ट्वेल्थ के बाद डिसाइड करें करियर ऑप्शंस क्या है, बट आई फील ट्वेल्थ के बाद तो आपको कॉलेज स्टार्ट करना है। हम्म। आफ्टर दैट इफ यू डिसाइड, इट बिकम्स अ लिटिल लेट, बिकॉज आजकल जो है हालात, ऑलमोस्ट ऑल गुड कॉलेजेस फॉर देयर एडमिशन दे हैव एंट्रेंस टेस्ट। तो आप ट्वेल्थ खत्म करने के बाद जैसे मार्च में ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हुए,
और ये सारे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये हम्म सब होते हैं मई में। तो एक महीने में तो आप क्या ही तैयारी कर लेंगे? हम्म So when you have to decide on a career, it can't be after 12th standard. ओके You need to do something at a very early stage. You look at this chart and you can make out there are endless careers in हम्म all streams. And these days वो एक माना भी नहीं जाता, जैसे पहले बोलते थे कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले तो कुछ पढ़ते ही नहीं है, साइंस वाले टॉपर्स हैं। हम्म नाउ ऑल दिस डिस्क्रिमिनेशन ये सब खत्म हो गया। एवरी हम्म फील्ड हैज इट्स ओन चार्म एंड बहुत ऑप्शंस हैं। हम्म नाउ द चॉइसेस दैट पीपल नीड टू मेक, लाइक उनको ये डिसाइड करना है, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कि करना क्या है लाइफ में। व्हाट डू दे वांट टू डू इन लाइफ? डू दे वांट टू वर्क? डू दे वांट टू हैव देयर ओन स्टार्टअप और बिजनेस, या फैमिली बिजनेस है उसको आगे लेके जाना है? वो चॉइसेस उनको ध्यान में रखनी है। हम्म खुद भी सोचते हैं, यहाँ पे पेरेंटल प्रेशर भी आता है, सोसाइटल प्रेशर भी आता है, पीयर हम्म प्रेशर भी आता है, एंड स्टूडेंट और कंफ्यूज होता जाता है। So I won't say at this stage you decide. It's not possible to decide. Hence, why those engineer students would not have said, "Ma'am, that we regret doing engineering." So they need to do a lot of research and understand हम्म and ask themselves a big question. Do I dream of something which I feel, yes, I have to see myself 5 years down the line, 10 years down the line? Is there an inspiration? I want to be like my uncle. I want to be like Steve Jobs or my dad. That dream is very important. कहा जाता है कि सपने पूरे ना हो तो चलेगा, सपनों का होना बहुत जरूरी है, सपना राइट देखना बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू हैव अ ड्रीम। व्हाट्स द एस्पिरेशन? ये सब दिमाग में रखनी है चीजें, पहले ये होंगी तभी पूरी करने की इच्छा होगी। तो इज दिस द वे, और ये जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर करियर कि चलो अब हमने कॉमर्स लिया है तो बीकॉम कर लेंगे, फिर देखेंगे अकाउंटेंसी करना है, फिनेंस करना है, सीए करना है, बाद में सोचेंगे। या चलो अभी साइंस ले लेते हैं, बाद में साइंस के बाद तो हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ये हो गया कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द करियर। Now, when you don't have any dreams, that's a you problem. That's a student's problem. So, ये problem हमें हटाना है. And look at this, the picture here. So many students are doing a similar kind of a task, and one person is watching them. Now they are just going with the flow. Okay, CA का scope है. Okay, CFA का scope है. नहीं, I want to do, like, you go to Bihar and UP, everybody wants to clear UPSC exam. You go to Rajasthan and Haryana in our country, they all want to join defense services. So it's like, what is everybody doing? They just want to do. The society wants that. So all these things we need to be very careful about. And in the midst of this confusion, the student feels like, probably I am not good at this. I don't have the capability of becoming a doctor. Let me take art. The moment you are having self doubt and others are having faith in you, then why do you have to be scared? You need to bring out your potential. You need to understand. You need to talk to others and exploit. I'm sure आपने भी सुना होगा, बाकी आपके सेशंस में आपने पॉडकास्ट करे होंगे। दिस जनरेशन जी विच वी आर कॉलिंग, वो अपने एक शेल में जाता जा रहा है। बहुत कम है जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, स्पेशली एल्डर्स से। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सब है, वो टाइप इंस्टाग्राम पे हैं, स्नैपचैट पे हैं, but are they actually wanting to take advice or suggestions from their seniors? They think no, there's no need, I should not talk. What if people start Yes. judging me? The likes on their posts is the biggest thing to them. That means अंदर ही अंदर स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं खाता है कि आई एम बीइंग जज्ड. So if a small post they are thinking कि क्या लोग रिएक्ट करेंगे, तो करियर के टाइम पे तो दे आर इन सो मच ऑफ प्रेशर. In fact, if you see again, Nijarji, all of us watched World Cup with that enthusiasm, and the final, we were like very sure we all will win the match because the consistent performance of the team was, that gave us a lot of hopes. मगर अगर आपने ध्यान से मैच किसी ने भी देखा, so one thing was also observed that the youngsters, 3-4 of them who were great performance in other matches, that day they couldn't perform. Right. Whatever pressures were there, the crowd, the expectations, they did not perform that day. Take example of Surya Kumar Yadav. I mean, the next
day in T20 he performed so well in the next couple हम्म। of days, and बिल्कुल। that day he couldn't. Do you understand the pressures that this generation is having? And बट here, as सॉरी नीलिमा टू इंटरप्ट, बट मुझे लगता है ये जनरेशन ज्यादातर वर्चुअल वर्ल्ड में रहती है। दिस इज द चॉइस दे हैव मेड। उनका जो रियल वर्ल्ड से वो कनेक्शन टूटता जा रहा है, और ये उन्हें ही एक्चुअली रीएस्टेब्लिश करना है। क्योंकि आप बात करते हैं सोशल मीडिया पे, आप उन लोगों के साथ बात ही नहीं करते जो दोस्त हु आर देयर विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हु विल ऑलवेज वांट योर यू नो गुड फॉर यू। तो उस yeah, उन लोगों से ये बात नहीं करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है ये भी इस कंफ्यूजन में ऐड करती हैं। करती हैं, पर जहां जरूर तक मैं करती हैं, समझती हूँ, बिल्कुल। सोसाइटी की इतनी कोई ज्यादा वैल्यू कोई करता नहीं, क्योंकि द थिंग्स विच दे आर डूइंग आर मोस्ट ऑफ देम आर अगेंस्ट सोसाइटी बिकॉज दे वांट टू गेट आउट ऑफ द रट। तो सोसाइटी को ब्लेम करना मुझे लगता है एक शायद वो हो गया, क्या कहेंगे चार लोग, आजकल बहुत चल भी रहा है, बट एक्चुअली अब कोई चार लोग बचे नहीं है कहने वाले सोसाइटी में। सभी लोग उसी उस पे ही हैं, सब एक ही हाँ। जैसे तो ये पेज मुझे पे हैं। लगता है कि ये एक जो वर्चुअल रियलिटी में अगर आप रहने लगते हो ना, तो आप रियल वर्ल्ड से आपका कनेक्शन इतना कम हो जाता है। तो शायद ये भी एक कंफ्यूजन में हो सकता है। दैट इज व्हाई पीपल नीड मेंटर्स एंड काउंसलर्स एंड Yes, पीपल yes. हु हैव एक्सपीरियंसेस जो सही राह दिखा सकें, लाइक यू। तो ये I mean, हमें yes, ये जरूरी है जो भी एक्चुअली, ये गाइडेंस। बिल्कुल, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, देख रहे हैं आपकी कितने बुरे हम्म। हालत है। आप गूगल सर्च करते हैं, हाफ द वेबसाइट्स आर फेक, सो यू हम्म। कांट ट्रस्ट दैट इंफॉर्मेशन। हम्म। तो यू नीड रियल लाइफ मेंटर्स, जो हम्म। आप उनसे बात करेंगे तो जरूर फायदा होगा और हम्म। मिलेगा आगे जाके उनको बेनिफिट। सो वी नीड टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स, बट यहाँ पे मैक्रो व्यू क्या लेना है, अपना व्यू कि मुझे ये नहीं करना, या मेरे बच्चों को ये कराना है, या ही इज गुड एट दैट, that is one perspective towards career choice. हम्म। The हम्म। other perspective is the macro view. हम्म। वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो भी हम्म। उनको हम्म। ध्यान रखना है। लाइक इंडस्ट्रीज की बात करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें, आप डिसरप्शन हो रहा है टेक्नोलॉजी में। आई एम श्योर आप भी सब देख रहे हैं, एआई, हम्म। डेटा एनालिटिक्स, ये सब कितना मेजर चेंजेस। हम्म। तो इसको अडेप्ट करना, न्यू स्किल सेट ज्वाइन करना, आई मीन इम्बाइब करना, ये सब बहुत बहुत जरूरी है। So we need to consider all these factors while making a choice for us. I like to do something, but उसका स्कोप ही नहीं है, उससे रिलेटेड जॉब ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा लेने का, हम्म। ऐसी चीजें। So this is the macro view about economy, about world, about your country where the opportunities are there हम्म। in this changing landscape. So robotics हो गया, blockchain हो गया, these are the new things that are coming up, and you won't believe the kind of job market that is going to be lost. This, I mean, it's being, the World Economic Forum की report है, 85 million job losses are going to be there very soon because so many professions are becoming redundant. AI करने वाला है वो काम, लेकिन 97 मिलियन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली हैं हम्म। इसी फील्ड में। तो उसके लिए आपको इन सब चीजों का अपने लिए स्किल डेवलपमेंट करना रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। क्या हम्म। हम एक्चुअली ध्यान देते हैं इन चीजों पे डिसीजन मेकिंग जब हमारे करियर की होती है? आई डाउट कोई पेरेंट या चाइल्ड ये कंसिडर भी करता है कि मुझे आज सीए बनना है तो मैं इन चीजों का ध्यान रखूं। सो दैट इज समथिंग दे नीड टू वर्क अपॉन। So we need to consider the macro view as well when we decide on our career choice. हम्म। So what's the right choice? Exactly how do you determine the right choice? I would suggest that choice becomes your right choice, which definitely interests you. आपको उसको करने में मजा आए, लर्निंग कोशेंट हाई हो, वो आपका ड्रीम भी हो जो आप अचीव करना चाहते हैं। स्पेशली अगर हम यहाँ पे, आप किसी भी डिफेंस पर्सनल से मिले होंगे ना कभी नीरजा जी, तो आप देखिएगा वो हमेशा यही कहते हैं कि हमने बहुत पहले जिंदगी में सोच लिया था कि हमें देश सेवा करनी है,
That's how they are ever ready for the supreme sacrifice for their country. तो बचपन से सपने देखने चाहिए, and you should have that in your mind. Yes, I want to do this in my life. Then you should see your current strengths also, कि मैं ये कर पाऊंगा, अपना ड्रीम अचीव कर पाऊंगा. हम्म यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर आपको दूं, लाइक माय हस्बैंड इज अ फाइटर पायलट. So, naturally, my children wanted to be pilots in the Indian Air Force. So my son decided, he was very clear, I want to be fighter pilot in the Indian Air Force. और जब आई एग्जाम देने की बात सब हुआ, तो मेडिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब कराया तो उसका आई साइट वॉज नॉट 6x6 विदाउट स्पेक्स. So he couldn't be a fighter pilot. So we need to check our strengths also, कि चलो ड्रीम्स तो है, इच्छाएं हैं, कर भी सकते हैं, मगर सारे पैरामीटर्स में हम खरे उतर रहे हैं कि नहीं. हम्म So the strengths and the weaknesses we should take into consideration. मान लीजिए मुझे MBA फाइनेंस करना है और मैं नंबर क्रंचिंग कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो ये फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो करियर चॉइस बनाने में. हम्म एवरीथिंग नीड्स टू बी कंसिडर्ड. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जैसे हो गई. अब अब जैसे अगर हम वोकेशनल कोर्सेज की बात करते हैं, कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम 12th के बाद ही थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू कर ले और साथ साथ पढ़ाई करें. तो स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया में बहुत सारे कोर्सेज गवर्नमेंट ने भी चलाए हैं. हम्म उसमें मान लीजिए लोग बोले कि अब हम डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम शुरू कर ले, मैं उसका एक छोटा कोर्स करके 12th के बाद कर लूँ. तो दिस इज अ वेस्ट ऑफ एफर्ट एंड मनी, बिकॉज अब रिडंडेंट होने वाले हैं, डेटा एंट्री सब एआई के थ्रू होने वाला है. हम्म तो हम जो करना चाहते हैं उसका स्कोप है भी कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज हैं, हम्म तभी आगे बढ़े, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ टाइम. तो राइट. हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते ये सारे रिसोर्सेज. तो वी नीड टू कंसिडर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. और अगर हम अपना खुद का कुछ करना चाह रहे हैं अपनी पढ़ाई के बाद, बिजनेस खोलना या बिजनेस एक्सपेंशन, तो क्या वो वायबल है भी कि नहीं आज के सर्कमस्टांसेस में. दैट will decide on the choice whether it's right or not. All these factors need to be considered. अब यहाँ तक तो ठीक है, हमने थोड़ी जेनेरिक बातें करी. अब आगे एक्चुअली ये करते कैसे, राइट चॉइस हाँ, हमें ये कब दिस इज स्टार्ट वेरी करना इम्पोर्टेंट. चाहिए. हाँ. हाँ जी. और यहीं पे कंफ्यूजन होता है, बिकॉज आपने तो सुना ही होगा हर कहीं, शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है, जिसने ये किया तो आप भी करिए. हाँ. तो यहाँ पे जो प्रेशर, में जिस प्रेशर की बात कर रही थी, पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, वो यहाँ से इतना ज्यादा मैस क्रिएट करता है सबके हेड में, कि हम्म चलो आप ये कोचिंग ज्वाइन कर लो, हम्म रेजोनेंस अच्छा है, आकाश अच्छा है, नीट करना है तो ये करिए. वो सब आप सडनली 10th में बच्चे आते हैं और पेरेंट्स ये सब ज्वाइन करवा देते हैं, हम्म लिटिल रियलाइजिंग 12th के बाद कि नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए. हम्म देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग द चाइल्ड, वेर एज हम्म विच इज वेरी रॉन्ग. उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, हम्म मगर वो उसका फोर्टे था ही नहीं. हम्म तो ये क्या करना है अभी हमें, व्हाट इज द रोड अहेड टू मेक द राइट चॉइस फॉर पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन. लेट्स सी दैट. हम्म यू नीड टू स्टार्ट वेरी अर्ली टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. मेरे को कौन सा करियर चाहिए, इसका चॉइस आपको, चॉइस नहीं बोल रही हूँ मैं, डिसाइड आप बाद में करिए, बट चॉइसेस हैं क्या क्या, हाँ. ये यू शुड हम्म लुक एट आफ्टर 8th standard. Now some career counselors or some psychologists or children counselors may not agree to it, कि क्यों प्रेशर डालना है बच्चों को 8th standard में. A 14-year-old can't decide. हम्म My point is, a 14-year-old has, he should not decide at that moment, but should start exploring things, कि ये चीजें हमें करनी है. हम्म So after 8th standard exam, छुट्टियां हैं, समर वेकेशन 2-2 महीने की होती हैं, हम्म you should start giving your child an exposure to things like situational awareness. क्या होती है situational awareness? हम्म अगर आपके घर में you find an elderly person सडनली फेंट हो गए, कोलैप्स हो गए, या उनको कुछ हो रहा है, घर में कोई एडल्ट नहीं है, then what do you do? You need to tell that child, if there is an emergency at home, this is your go-to number. Contact this doctor, contact 108, contact us, and we'll reach there. हम्म Make the children aware of the emergencies, and short circuit घर में हो जाए तो क्या करना है. You can't keep on pampering the child. Give them राइट. responsibilities. Make them aware with these small, small things.
that will help them take the right decisions and हम्म save a lot of energy and life. हम्म Give them leadership skills. Okay, now today this is the day that you decide where are we going to watch the movie or eat the food. Simple, simple, small, small things. हम्म We can have, there are a lot of courses also going on. There are a lot of clubs that they can join. Online clubs are there that they participate in discussions. If you remember, नीजा जी, White Hat Junior ने 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कोडिंग स्टार्ट की थी हम्म कि दे हैव कोर्सेज फॉर कोडिंग एंड ऑल, एंड एवरीवेयर इट वाज chaotic कि क्या जरूरत है बच्चों पे इतना लोड डालने की. हम्म Whereas it was not exactly load. They were not giving the skill for employment. They were just exposing the students कि ये भी एक option है. हम्म So that all these things, like there are a lot of organizations or educational institutes, they offer a lot of case study methodology in teaching youngsters like 12-year-old, 14-year-old. They'll give them situations and cases and ask them their solutions for that or their viewpoint for that. At least you are making the child think हम्म एंड यू आर लिसनिंग द पर्सपेक्टिव. जो कि हमारे घर में इंडिया में तो डिक्टम होता है, डू दिस डोंट डू दिस, घरों में यही रहता है. हम हम्म इंक्लूसिव कहाँ बनाते हैं अपने बच्चों को. तो 8th स्टैंडर्ड के बाद मुझे लगता है थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि ये सारी चीजें डेवलप होने लगे बच्चों में, ये स्टार्ट करना चाहिए. बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू. आप इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप चाहते हैं लोगों के साथ रहना या अकेले काम करना चाहते हैं. टेक दैट नो एंड देन डिसाइड कि यू वांट टू चेंज. So you have enough time. You have 4 years to transform. And we should not forget that personal development is most important for professional development. अच्छा, ये ये टेस्ट हम कहाँ कोई अगर करना चाहे तो लोगों को कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए? ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है. अच्छा. मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता सकती हूँ. जैसे एक MBTI करके टेस्ट होता है. MBTI मैं आपको लिंक्स वगैरह भी भेज शेयर हाँ, कर आई दूंगी विल आपके शेयर साथ. दैट यू कैन इन द अवेल. डिस्क्रिप्शन. फाइन. यस. सो एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जिसमें बेसिक मैथ्स होता है, बेसिक इंग्लिश, रीजनिंग, छोटे छोटे इंसिडेंट्स दे देंगे और ये सारी चीजें. यू जस्ट यूज योर ब्रेन. यहाँ पे आपको कोई पास्ट नॉलेज नहीं चाहिए. खाली आपको उस टाइम पे अप्लाई योर बेसिक स्किल्स एंड ब्रेन एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे पजल सॉल्विंग होती है. So do start doing this in 8th standard summer vacation, psychometric test, aptitude test online, and understand, okay, I'm good at this, I'm not so good at this. I am not so good at this doesn't mean I can never do that. That means I need little more practice on this. राइट. तो वहां से स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता चलती हैं. आजकल 9th स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन आ जाता है. वो आपको एक बनाते हैं कि ओके कंसोलिडेट करके ये वाला सेट लेना है कि ये वाला सेट लेना है. PCM इकोनॉमिक्स के साथ लेना है, PCB साइकोलॉजी के साथ लेना है. जैसे भी कहीं पे 11th में है, काफी ICSE बोर्ड में तो 9th में भी आ जाता है सिलेक्शन. और प्लस एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं. जब आपके पास सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आप सब पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, एट दैट टाइम यू कैन आइडेंटिफाई, ओके मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, आई कैन थिंक ऑफ हायर स्टडीज इन दिस सब्जेक्ट. बट हियर द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स नीड टू टेक अ कॉल कि आई डोंट लाइक हिस्ट्री बिकॉज माई हिस्ट्री मैम इज नॉट गुड. Now, that should not be the reason now in this digital era. If your computer teacher or a history teacher is not good, you have so many other means to get knowledge of that particular subject. YouTube है, कितने सारे मीन्स हैं कि हम पढ़ सकते हैं अगर हमारी टीचर अच्छी नहीं है. हम लोग राइट. के टाइम तो पहले ऐसे होता था कि फिजिक्स मैम अच्छी नहीं है तो फिजिक्स नहीं करना है, या मैथ्स सर तो नहीं करा पा रहे. नो, अभी ये नहीं होना चाहिए. You should see if you're liking something, try to learn it in a better manner from different sources and ascertain and assess कि हाँ मुझे ये ठीक लग रहा है. और हम लोग समर वेकेशन में क्या कराते हैं बच्चों को, पेरेंट्स जनरली एक फिजिकल फिटनेस की क्लास हम ज्वाइन करा देते हैं, चलो टेनिस कोचिंग चले जाइए, या चलो हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करा देते हैं, चलो यार चेस क्लासेस. दीज आर गुड, दीज आर वेरी गुड फॉर डेवलपमेंट. साथ साथ अगर हम छोटे छोटे कोर्सेज, देयर आर 2 weeks 4 weeks courses available online on Coursera, Udemy for high school students. I can tell you the course is like if you want to pursue science,
मॉडल बेस्ड सिस्टम्स इंजीनियरिंग, बेसिकली 3D मॉडल्स के साथ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस के कॉन्सेप्ट वहां पे सिखाते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफिक्स, नंबर सिस्टम, छोटे छोटे हाई स्कूल के लिए आप ये कोर्सेज करके देखिए। कॉमर्स वाले बच्चे जो बहुत क्लियर है कि मुझे सीए ही करना है, एमबीए फाइनेंस ही करना है, या मुझे फैमिली बिजनेस संभालना है, तो उनके लिए अलग टाइप के कोर्सेज हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 9th 10th स्टूडेंट्स, डू दोज कोर्सेज, सी कौन सा आप फिनिश कर पाए, कौन सा नहीं कर पाए, कहाँ पे आप अटक रहे हो, कहाँ पे आप सोचते थे कि यार ये मेरा इंटरेस्ट है पर मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। बिकॉज दीज कोर्सेज टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और वही लाइफ है। आप जो पढ़ेंगे कॉलेज में वही आपको अप्लाई तो करना है जॉब में। तो अगर आप थोड़े 9th 10th स्टैंडर्ड के आसपास आपको एक अवेयरनेस आ रही है कि हाँ मैं अगर एनालिटिक्स वाला कर रहा हूँ तो और मुझे ऐसे अप्लाई करना है, तो फिर क्या मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो दैट्स माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि 9th 10th की छुट्टियां वेस्ट ना करें कोचिंग्स में और इन चीजों में। ये छोटे छोटे कोर्सेज, अब ये सेल्फ पेस्ड कोर्स है, ऑनलाइन है, तो बहुत इजीली कर सकते हैं, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि एम आई कट फॉर दिस, एम आई मेड फॉर दिस काइंड ऑफ अ फील्ड। 10th स्टैंडर्ड तक अगर आपने ये सारी चीजें कर ली, 10th के फाइनल तक आते आते आपने सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ लिए, आपने कुछ स्किल सेट्स को भी इम्बाइब कर लिया, और आपको पता है कि प्रोफेशनल जर्नी में मैं